Hello everyone, how are you all? Hope all are doing good. Welcome back to my YouTube channel, PhD Digital Maths. In this session, we are going to solve section B of sample paper 4. Section A already हमारा complete हुआ है. आपको I button में उसका link मिल जाएगा. Those who have missed section A. Let's start with section B. Question number 7. Calculate the mode of the following data. So mode के लिए हम लोग पहले क्या observation होना चाहिए? What is the maximum frequency? Which class interval has the maximum frequency? So यहाँ पे maximum frequency किसका है? 12. So we will write down here maximum frequency is equal to 12. Therefore, what is the class interval of that frequency? Class interval of maximum frequency is 40 to 60. Okay, 40 to 60 class maximum frequency है. So what is the modal class? जो maximum frequency रहता है वही modal class होता है. Therefore modal class is 40 to 60. Now we will put the formula. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Okay. So यहाँ पे L क्या है? Here L is equal to lower class interval का जो lower limit है वो होता है. So is equal to 40. F1 कौन सा होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, दैट इज F1. F0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, दैट इज 9. एंड F2 आफ्टर सक्सेसर. ये प्रीडेसर, ये सक्सेसर. F0 जो होता है वो प्रीडेसर एंड सक्सेसर 6. एंड व्हाट इज द H? H is the size. What is the difference between the class intervals? वो निकालना है हमें. 60 minus 20, 60 minus 40, 20. Now just put the values. 40 plus 12 minus 9 upon 24 minus 9 minus 6 into 20. So 40 plus this will be your 3 upon 9 आएगा. 3 upon 9 multiply by 20. So 40 plus ये simplify 1 upon 3 होता है. 20 upon 3 you will get 6.6666. So approximately we will take 67. So 46.67 is the answer. So answer यहाँ पे लिख रही हूँ. Hence mode of the data is 46.67. Okay. Question number 8. The length of shadow of a person is x meter long when the angle of elevation of the sun is 45 degree. If the length of the shadow increases by √3 minus 1, यहाँ पे question में एक missing है, यहाँ पे x actually है. ठीक है. Then find the new angle of the elevation. So let AB is the person. AB person है. BC जो है उनका shadow first is x और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री गिवन है. दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा है? इफ द शैडो इंक्रीजेस बाय √3 minus 1x. ओके. यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज हाउ मच. ये कितना है हमें फाइंड करना है. एप्लीकेशन टू ट्रिगो में एक ही चीज है, अगर आपको ड्रॉ करना आ गया देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द एंटायर सम. बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे. ओके. गिवन लिखेंगे ए बी द पर्सन, BC बी इट शैडो,
and this is D. BD is the extended shadow. BDB its increased shadow. तो सब ये मेंशन करना पड़ता है बिकॉज जो चेक करता है दे हैव टू बी क्लियर व्हाट यू हैव टेकन टू ए बी बी सी सी डी. अगर ये नहीं लिखोगे ना तो क्लैरिटी नहीं आएगा उनको. एंड ऑल्सो लेट द न्यू एंगल बी थीटा. लेट द न्यू एंगल बी थीटा. और क्या गिवन है नेक्स्ट? बी सी इज इक्वल टू एक्स. CD is equal to √3 minus 1x. BD is equal to x plus √3 minus 1x. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. x plus √3x minus x. ओके, ये 1 है ना. √3x minus x. यस. तो यहाँ पे आपको BD का वैल्यू क्या मिलेगा? BD का वैल्यू सॉल्व करने के बाद ओनली √3x. ठीक है, ये एक वैल्यू है हमारे पास, ये एक है, ये एक है. नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपन BC परपेंडिकुलर अपन बेस. AB अपन BC. tan 45 का वैल्यू 1 है. AB अपन BC का वैल्यू x है. तो AB का वैल्यू क्या आया यहाँ पे? AB इज इक्वल टू x. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओवर. नाउ इन ट्राइंगल ACD, सॉरी ADB, ADB tan theta is equal to AB अपन BD, राइट? AB अपन BD. अच्छा, tan theta is equal to AB का वैल्यू, AB का वैल्यू अभी हमने निकाला है इक्वेशन 1 में. सो डायरेक्टली पुट x अपन BD का हमने सॉल्व किया है. √3x आया. √3x दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपन √3. tan के टेबल में 1 अपन √3 कब आता है? tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो आंसर में लिखना है hence the new angle of elevation of the sun is 30 degree. Answer is compulsory. Don't forget to write the answers. Hence जो भी है, hence the new angle of the elevation of the sun is 30 degree. Okay. Question number 9. Prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. So यहाँ पे एक मैंने सर्कल बनाया, tangent बनाया. Make point को नेमिंग देते हैं PTQ. सो वो क्या क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या बोले हैं? PT इज इक्वल टू TQ हमें प्रूव करना है. ओके, सो गिवन हम लिखते हैं, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O at which tangents, tangent का नाम देना है PT and QT are drawn from an external point T. हो गया, ये है गिवन. जब भी प्रूव करने के लिए दिया जाता है ये सब कंपलसरी लिखना है. नाउ टू प्रूव में क्या लिखना है? टू प्रूव के हिसाब से टेंजेंट्स आर इक्वल करके प्रूव करना है. दैट मीन्स TP इज इक्वल टू TQ प्रूव करना है. नाउ द कंस्ट्रक्शन पार्ट. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बट लिसन, अगर आप प्रूव करोगे सो ये सेंटर है, इतना ही है हमारा फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ कंस्ट्रक्शन पार्ट में जॉइन, दिस इज O सेंटर को, जॉइन OP, OQ एंड OT. दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. क्या करना है? जॉइन OP, OQ एंड OT. जॉइन OP, OQ एंड OT. ठीक है, इतने तीनों को ज्वाइन करना. नाउ द पार्ट इज प्रूफ. सो ये जो है ये चारों कंपलसरी लिखो, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे.
we know tangents are perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to radius at the point of contact. At the point of contact, ये हमें पता है थ्योरम के हिसाब से. Therefore क्या होगा, TP is perpendicular to OP and TQ is also perpendicular to OQ, right? Therefore OPT जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री, एंड OQT एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री. नाउ अभी हम दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे. इन ट्रायंगल OPT एंड OQT, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो व्हाट आर द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज OPT इज इक्वल टू OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमने अभी उनको शो किया है, प्रूव्ड अबव. तो वो लिख दो, अदरवाइज इसे इक्वेशन 1 लिख के लिखो. सेकेंड पॉइंट इज OT कॉमन, ठीक है, OT कॉमन है. थर्ड पॉइंट इज OP इज इक्वल टू OQ विच आर द रेडियस, रेडाई. ओके, हो गया. तो क्या होगा, तीनों पॉइंट इक्वल हो गए. देयरफॉर OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू OQT. कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. पूरा लिखो. देयरफॉर PT is equal to TQ by CPCT. CPCT corresponding parts of the congruent triangle. Hence proved. Hence proved. Okay. So ये जो parts है, these are most important. अगर एक भी नहीं लिख रहे हो तो भी marks कटने का chances है. So don't इग्नोर दैट कि चलो ये छोटा सा ही है कि हम लोग छोड़ देंगे. नो बेटा, उससे क्या होता है कि मार्क्स कट जाएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.